Hi everyone, I hope you all are doing really very well. This is Vamakshi Verma and you are watching The Central Science. This video is the third installment of chemical kinetics and this video contains lot many equations and mathematical expressions. So guys, I request you all to please be patient while watching this video, and if you have any sort of doubt, please do comment it in the comment box so that I can clear your doubts. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so let's get started. So integrated rate laws. So I'll first define what are integrated rate laws. Uh, the differential rate laws are converted into integrated rate laws, and these tells us about the concentration of reactants for different times. Okay. So now what are differential rate laws? हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट में एवरेज रेट का डेल्टा चेंज करके हमने लिखा था डी, एंड दैट डी वाज नथिंग बट डिफरेंशियल. ओके, सो ये डिफरेंशियल रेट लॉ वो इंस्टेंटेनियस रेट लॉ है. ठीक है, so this differential rate law is now converted into integrated rate laws here. Okay, ये हमको क्या बताएंगे integrated rate laws? These tells us about the concentration of reactant for different times. Okay, suppose that I have started my reaction at time t is equal to 0 seconds, and I have to find out the concentration of reactant at time t is equal to 10 seconds. Okay, सो वो 10 सेकेंड्स में मेरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉस से पता चलेगा. यानी कि मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉस के हेल्प से हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस भी टाइम पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करना है वो टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं. उस हिसाब से हम रिएक्शन को वेरी कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. ठीक है, सो this is nothing but your integrated rate law. ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉज आपके तीन है 12th स्टैंडर्ड में. फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर, देन जीरो ऑर्डर एंड देन सूडो फर्स्ट ऑर्डर. ऑर्डर इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट्स, ओके, विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट वीडियो. वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर्स कैसे लिखना है, क्या है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ से. ओके, सो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. नाउ लास्ट वीडियो में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हर एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है. ओके, एंड हर एक रिएक्शन का अपना खुद का ऑर्डर होता है. ओके, सारे रिएक्शंस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, तो किसी का फर्स्ट होगा, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, किसी का हाफ. ओके, दैट वेरीज. So here we are studying about first order rate law, and here I'll consider a general reaction which says consider the following reaction. A is your reactant and P is your product. Okay, now according to this definition we have to convert the differential rate laws into integrated rate laws. Okay, so let's start. So the instantaneous rate for this reaction can be written as this equation. Okay, now here rate is nothing but your instantaneous rate, माइनस इज नथिंग बट द थिंग दैट इंडिकेट्स कि आपका ये जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है. ओके, बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, so this d term is nothing but your differential term. Square brackets indicates your concentration. Concentration of what? Concentration of reactant. So reactant is nothing but A. So here we have written A divided by time. Okay, now this was my instantaneous rate. The second thing that I will write, हमने रेट लिखना दो तरीके से सीखा था. एक रेट एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा तरीका था रेट लॉज. Okay, so this is my second way of writing the rate, and this is nothing but your rate law. Okay, now rate law can be written as K. Okay, so basically it is written as rate is directly proportional to concentration of the reactant raised to some order. So डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हम हटा के यहाँ पे हम इक्वल टू और के सब्सटीट्यूट करते हैं, के इज नथिंग बट योर कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट हियर. ओके, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट्स योर कॉन्सेंट्रेशन. ये भूलना मत, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आगे के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो. ओके, this one is nothing but your first order. The order is 1. Why the order is 1? Because it is first order.
and here we are assuming that this reaction happens to be in first order. Okay, so these are my two basic equations which I have explained you in the very first video. Okay, now I'll just number the first equation as 1 and the second equation as 2. So from 1 and 2 you can see that the left hand side is same, so the right hand side has to be same. So we can write the equation from 1 and 2 like this. Okay, now यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 जो है ये 1 यहाँ पे नहीं लिखा है. लॉजिक सी बात है, मैथ्स में आप इतना आपने सीखा ही होगा कि 1 जब भी पावर में होता है उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ये वहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. Now this equation remains as it is. Okay, so from 1 and 2 we get that these right hand side equations are also equal to each other. So after rearranging that above equation what we get is this. Okay, so यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, ये माइनस साइन को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर. ठीक है, the minus sign have been shifted to your left hand side. Okay, concentration of A के टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactants. Equal to minus is taken on the left hand side and this dt which was in division is taken as a multiple. Okay, so now we have to solve this equation and we have to find out the integrated rate law, and this is nothing but your differential rate law. Now we are going to convert this differential rate law into integrated rate law more specifically. Okay, so let's see. So this was my equation. Let's get started here how to solve this equation. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे. ठीक है, सो ये हमारा हो गया लिमिट्स. ओके, सो दीज आर माय लिमिट्स. आई विल एक्सप्लेन यू द लिमिट्स. जब टाइम t 0 था, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो टाइम 0 होता है. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो टाइम t इज इक्वल टू 0 और वहां पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का दैट वुड बी ए नॉट. ओके, तो ये सिर्फ एक नोटेशन है जहाँ पे आपको पता लगता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज ए नॉट. When time was t seconds, say 10 seconds, it can be 5 seconds, it can be 1 second, it can be 2 seconds, anything. Okay, तो ये वो टाइम है जब आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को फाइंड आउट करना होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. So this is that time. At that time the concentration of A becomes AT. ठीक है, so ये हम यहाँ पे लिमिट सेट कर रहे हैं कि जब टाइम t 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो था वो A नॉट था, जब टाइम t था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो था वो AT था. Now we'll integrate both these sides of the equation. Okay, so this is how we integrate. Okay, now जो मैथ्स का मतलब जिसको मैथ्स में थोड़ा सा इशू है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि ये इंटीग्रेशन की साइन है. दीज आर नथिंग बट योर लिमिट्स. नाउ ये कॉन्सेंट्रेशन का जहाँ पे हमने लिखा है वहीं पे हम कॉन्सेंट्रेशन के लिमिट्स लिखेंगे. ठीक है, एंड दिस इज योर डी टी टर्म, तो जहाँ पे टी का टर्म था वहीं पे हमने टी के लिमिट्स लिखे हैं. एंड दिस इज योर कांस्टेंट. नाउ कांस्टेंट को हमने बाहर क्यों लिखा है, कांस्टेंट को हमने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट्स का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज माय integration term. Okay, and I have applied on both the sides. Now after solving this, इसको solve कैसे करना है वो बता देती हूँ. हम कोई भी चीज़ का कोई भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में करना है. जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसी के इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे डी ए है तो हम जो भी ए के टर्म्स में होगा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसका ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना. यहाँ पे डी टी है, डी टी के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीपल है वो मल्टीपल है 1. ठीक है, सो जो मैथ्स बैक जो जिसने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा उसको अच्छे से आ गया होगा बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, लेट्स सी. So when we integrate this, 1 upon concentration of A का जो आंसर होता है वो होता है नेचुरल
natural log of concentration of A. ठीक है, so 1 upon concentration of A is nothing but natural log of concentration of A. एंड दीज वर माई लिमिट्स जो अभी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. ठीक है, दिस माइनस के रिमेन्स एज इट इज. वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इज नथिंग बट टी. ठीक है, सो डी ए के टर्म्स में इंटीग्रेट किया तो ए का ही आंसर मिलेगा. डी टी के टर्म्स में डी टी के रिस्पेक्ट में किया तो हमको टी के टर्म्स में ही आंसर मिलेगा. ओके, अगर यहाँ पे x होता डी एक्स तो ये आंसर आता x. ओके, सो ये कुछ ऐसा है कि dt के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू dt है तो यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो t आएगा बिकॉज ये t के टर्म्स में. ठीक है, यहाँ पे जो a के रिस्पेक्ट में था इसीलिए हमने a को इंटीग्रेट किया. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है. यहाँ पर भी लिमिट्स है तो टाइम के लिमिट्स टाइम के जगह पे, कॉन्सेंट्रेशन के लिमिट्स कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे. तो ये कुछ इस तरीके से ना ये लिमिट्स को इस आंसर में कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले अपर लिमिट जो होगा वो अपर लिमिट को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. एक माइनस की साइन आ जाएगी बीच में एंड देन विल सब्सटीट्यूट द लोअर लिमिट. ओके, ये कुछ इस तरीके से होता है. व्हेन वी सब्सटीट्यूट द लिमिट्स, ये ए टी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पे पहले हमने सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे एल एन ए टी लगा दिया, फिर एक माइनस साइन आएगी, फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पे ए नॉट आ जाएगा. ओके, नाउ इक्वल टू रिमेन्स एज इट इज, माइनस के रिमेन्स एज इट इज. टी की जगह पे जब आप टी सब्सटीट्यूट करते हो तो टी ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है. टी की जगह पे जब आप जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा. ओके, नाउ ये कैसा हो जाता है ना कि टी माइनस जीरो, दिस बिकम्स लाइक दिस. ओके, एंड वी पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, सो टी माइनस जीरो इज नथिंग बट टी. सो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है टी. ओके, सो द इक्वेशन इज लाइक दिस. ओके, नाउ ये इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. तो मेरा सबसे पहला इक्वेशन जो सॉल्व करने के बाद आया है वो ये है. तो दिस इज माय इक्वेशन. नाउ इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, रीअरेंज करते जाएंगे, दैट्स इट. तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम. ऐसे क्यों, बिकॉज ये लॉगरिथमिक टर्म्स था. तो लॉगरिथमिक टर्म्स में जब माइनस साइन होती है तो वो टर्म्स को हम डिविजन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको डिविजन में लिख दिया. दिस साइड रिमेन्स एज इट इज. ओके, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहाँ पे ये के टी जो है वो हमने डिवीजन में ले लिया यहाँ पर. ठीक है, 1/t इट बिकम्स, एंड दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन को अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में तो ये कुछ इस तरीके से होगा. अगर मैं ये पूरे इक्वेशन में माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस. ये जो प्लस था यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस था, ये प्लस था तो ये हो गया है माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इक्वेशन उल्टा हो गया. ठीक है, पहले ये माइनस था, पहले ये वाला टर्म माइनस था. ओके, सो ये वाला टर्म नीचे था, अब ये माइनस है तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा. ओके, सो ये ए नॉट जो है ये ऊपर आ गया, ए टी जो है ये नीचे आ गया. ओके, so this is also one of my equation, this is also my one of the equations and this also. तो ये अभी तक हमको 3 इक्वेशंस मिले एंड इसमें कुछ भी बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये सिर्फ रीअरेंज करके हमको 3 इक्वेशंस मिल गए हैं. ठीक है, नाउ ये जब नेचुरल लॉग हटाएंगे तो हम लॉग टू द बेस 10 लगा सकते हैं. लॉग टू द बेस 10 लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी होता है विच इज नथिंग बट दिस 2.303. So when natural log is being substituted or converted into log to the base 10, so you get this type of equation. तो ये क्या हो जाता है, k is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 a naught by 80. Now ये जो है ये मेरा फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ का. ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ओके, ये इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ऐसा है. नाउ यहाँ पे ए नॉट को, ये ए नॉट को यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ए टी को ए माइनस एक्स. नाउ ये चीज़ क्या है, सपोज कि जो हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन जो है वो मेरा रिएक्टेंट जो है वो सपोज कि मैं ले रही हूँ 100%. सो इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था वो A0 था, ए नॉट था और वो 100% रिएक्टेंट था. ठीक है, सो माई रिएक्टेंट वॉज 100%. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 10 सेकेंड्स के बाद 10% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है. If 10% of the reactant has been consumed, that means that 10% of the reactant has been converted into product and
यहाँ पर हमको प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं है. वी आर ओनली सॉल्विंग दीज इक्वेशंस रिलेटेड टू योर रिएक्टेंट पार्ट. ओके, सो इफ आई एम सेइंग कि 10% इज बीन कंज्यूम्ड, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ 100 में से 10 को माइनस कर देंगे. ओके, और जब हम 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा 90. ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या देखना है, माई 80 इज नथिंग बट 90%. ओके, सो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A naught is written as A, and this A is nothing but initial concentration. Okay, and this A minus X is nothing but this system where you just subtract that part of your reactant which is being consumed. Okay, so ये परसेंट वाले सम्स के फॉर्म में ही मोस्टली आता है. आपके बुक में परसेंट वाले टाइप के कुछ सम्स हैं, उसमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं. Okay, so this is nothing but a type in which you can write the equation. ओके, यहाँ का यूनिट्स देख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है. ओके, सो दिस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, 2.303 इज अगेन अ कांस्टेंट. टी टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड. इट कैन बी आर, इट कैन बी मिनट, इट कैन बी इन ईयर्स. ओके, वट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स वो आपको वहाँ पे लिखना है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स हो जाएंगे कैंसिल, बिकॉज एक डिवीजन में एक मल्टीप्लीकेशन में. तो यहाँ पर आपका जो यूनिट आएगा वो होगा के विल बी ऑफ टाइम इनवर्स, बिकॉज सिर्फ हमारे पास एक टाइम बचता है. तो डायमेंशन इज टाइम इनवर्स. द यूनिट कैन बी seconds, it can be minutes, it can be hours, और it can be years, it can be days. Okay, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब का आपका यूनिट वहाँ पे बन जाएगा. So this was about your first order integrated rate law, and this is my final expression. Okay, so अगर आपको ये final expression अच्छे से आता है तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में भी, और एक अलग फॉर्म, मतलब जो अगर आपको जो भी डिमांड करेगा प्रेशर के टर्म्स में या कैसे भी, अगर आपको ये इक्वेशन आता है, दिस इक्वेशन इफ यू नो, यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन with respect to your sums. Okay, the sums whatever it demands to you, you can convert this equation into that thing. Okay, whether it be pressure or whether it be concentration. Okay, so this was about your first order rate law. अब हम इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि ग्राफ्स कैसे बनता है. ठीक है, सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दो ग्राफ्स बताए हैं. फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ ऐसा है. दिस इज माई रेट इक्वेशन, द वेरी फर्स्ट इक्वेशन विच आई हैड रिटन टू सॉल्व द इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट का था, एंड दिस वाज योर रेट लॉ. ठीक है, सो दिस इज रिटन एज in the form of y is equal to mx plus c. Okay, this is y is equal to mx plus c, and this equation is nothing but your straight line equation. Okay, so this becomes your y, this becomes your x, this is your m. Now यहाँ पर ये कुछ था ही नहीं. Okay, this zero was not there, बट यहाँ पे हमको कोई एक इंटरसेप्ट लेना था तो हमने यहाँ पे प्लस जीरो लिख दिया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी. ठीक है, ये y के जगह पे ये रेट प्लॉट किया हुआ है, x के जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कर लोगे, और क्योंकि आपका इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0 है तो ये ओरिजिन से पास होगा. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बट द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन. ओके, सो ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास हुई है, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ ये स्ट्रेट लाइन का आप जब स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप आपको k की वैल्यू देगा. नाउ व्हाट इज k? k इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट ग्राफ ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ हम दूसरा ग्राफ देखते हैं. दूसरा ग्राफ आपका ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन से बना हुआ है, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द फाइनल इक्वेशन विच वी हैड स्टडीड. ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना किया है कि 2.303 को यहाँ से मल्टीपल में था उसको डिवीजन में ले लिया है,
और टी टाइम जो था वो डिवीजन में था, राइट हैंड साइड में उसको इन लोग ने ले लिया है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, 2.303 को के डिवीजन में क्यों लिया है? द रीजन इज k is also constant and 2.303 is also constant and this will come as your slope. m is nothing but your slope और ये आपको slope के फॉर्म में मिलेगा। कांस्टेंट टर्म्स को हम कभी भी प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही x एक्सिस पे ना ही y एक्सिस पे, इसीलिए ये पूरे टर्म को इन लोग ने स्लोप के फॉर्म में रीअरेंज करके ले लिया है, ठीक है। सो दिस बिकम्स माई y, ये पूरा y है। ओके, सो दिस बिकम्स माई y, दिस इज m एंड दिस इज x। नाउ यहाँ पर भी आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, दैट c टर्म, तो यहाँ पर भी इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 ही होगा। ओके, एंड दिस वुड बी नथिंग बट योर c। ओके, सो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगेन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला टर्म प्लॉट हो गया y एक्सिस पे, the concentration term has been plotted into your x axis। okay, so this is not concentration, I am sorry for this, this is your time term, okay। So this is plotted on x axis and then you get a straight line here, and when this straight line uh, is solved for a particular kind of slope, तो slope आप कुछ इस तरीके से निकालते हो, तो ऐसा कुछ हम ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, और ये ट्रायंगल जैसा जो है ये आप पूरे लाइन में कहीं पर भी बनाओगे तो आपको ये जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी, ठीक है। सो ये लाइन का स्लोप जो है वो k डिवाइडेड बाई 2.303 हमको मिलेगा। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्राफिकल टर्म से हमको क्या पता चलता है? ग्राफिकल टर्म से हमको k की वैल्यू पता चलती है, ठीक है। तो ग्राफिकल टर्म्स जितने भी होंगे उससे हमको k की वैल्यू पता चलेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यू हैव स्टडीड टू ग्राफ्स। ओके, now let's move to the next topic of your first order reaction, ठीक है, and that is nothing but your half life। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ इज नथिंग बट उसकी आधी जिंदगी। नाउ ये हमको पढ़ना क्यों है? जस्ट रिमेंबर दिस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फॉलोड बाय some kind of reactions। okay, first order is followed by some kind of reactions। what are those reactions? आपने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर इज फॉलोड बाय रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस। ओके, ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आता है। सो फर्स्ट ऑर्डर इज फॉलोड बाय रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस। ओके, नाउ हमको हाफ लाइफ पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो मिनिमम ईयर्स से लेके मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 200 और 300 ईयर्स ऑल्सो, और मोर देन दैट ऑल्सो। अब उतने टाइम तक कोई बैठ के तो नहीं देख पाएगा कि कितने टाइम में वो डीके हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं। यहाँ पर नहीं, हम सारे रेट लॉज में हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर हमको हाफ लाइफ उसकी पता चल जाएगी तो हम उसका फुल लाइफ भी easily find out कर सकते हैं। सो दिस इज द हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला से ही लिंक्ड है। लेट्स सी हाउ। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, विच वाज नथिंग बट k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log टू द बेस 10 a0 बाय 80। ओके, सो इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे। नाउ ये जो a0 है, दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन एज इट इज। अब ये जो 80 है, मैंने आपको बताया है कि 80 is the concentration at any point of time which you have to find out। okay, 10 seconds, 20 seconds, any point of time। but now यहाँ पे हम 80 को convert कर देंगे, ठीक है, into half life। और हाफ लाइफ का मतलब क्या है? इनिशियल का आधा। अगर मैं इनिशियल 100% अज्यूम कर रही हूँ तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा? 50%। ओके, तो यहाँ पे हम उसको इस तरीके से सब्सटीट्यूट करेंगे। a0 रिमेन्स एज इट इज, 80 को हम a0 बाई 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल का आधा हो जाएगा। कितने टाइम में होगा वो टाइम को हम ले लेंगे t हाफ। जितना भी टाइम होगा दैट वुड बी माई हाफ लाइफ। उससे हमको ये पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन आधा इतने टाइम में होता है। ओके, सो बाय सब्सटीट्यूटिंग दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन हमको कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, जहाँ पे
T is being substituted into T half. A0 remains as it is. AT will be substituted as A0 by 2. Okay, तो ये A0 और A0 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. This A0 and A0 gets cancelled, A0 sorry, and ये 2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ऊपर, तो ये log to the base 10 2 हो गया. Now log to the base 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 2.303 इंटू 0.3010, यू गेट अ वैल्यू विच इज नथिंग बट 0.693. ठीक है, सो यू गेट अ वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ एंड दिस इज योर के. सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट योर हाफ लाइफ इक्वेशन. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी रीअरेंज एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस. यहाँ पे ये हाफ नहीं आएगा. ओके, सो ये k को आप यहाँ ले सकते हो डिवीजन में, t हाफ को आप सेपरेट ले सकते हो. तो जब आपको k फाइंड आउट करना होगा तो आप यू कैन यूज दिस इक्वेशन. जब आपको t हाफ फाइंड आउट करना होगा यू कैन यूज दिस इक्वेशन. ओके, हाफ लाइफ का भी एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, दिस ग्राफ इज वेरी मच सेम टू योर इंस्टेंटेनियस रेट. एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया हुआ है ए का यानी कि रिएक्टेंट का, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है टाइम. ठीक है, एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. नाउ सपोज हमको कॉन्सेंट्रेशन, अगर दिस इज माई 100%, इफ दिस इज माई 100%, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 50% कहाँ है. सपोज यहाँ पे मेरा कुछ 50% आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा I can just see the time and I can notice कि मेरा half life कितने टाइम में आ रहा है. So simultaneously I can find out कि कितने टाइम में वो पूरा radioactive decay process खत्म हो जाएगा. ठीक है, so this is your half life of first order reaction. So I hope कि आपको half life, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. अब जो हम करने वाले हैं वो है दूसरा रेट लॉ, यानी कि जीरो ऑर्डर रेट लॉ. ठीक है, सो जीरो ऑर्डर रेट लॉ के लिए भी हम एक जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल रिएक्शन ले लेंगे. ओके, सो सपोज योर जनरल रिएक्शन इज अगेन A to P, A giving you P, where A is your reactant which gives you P and that is nothing but your product. We are just assuming, ऐसा मत समझना कि ऐसे टाइप के रिएक्शंस के लिए फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ही होता है. नहीं, ये सिर्फ हमने एक कंडीशन रखा है कि ऐसे टाइप का एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है. ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो रेडियो एक्टिव डीके का होता है. मैं यहाँ पर भी एंड में आपको इसका भी एग्जाम्पल बताऊंगी. ओके, सो दिस इज माय रिएक्शन. नाउ जैसा आपने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था स्टेप वाइज एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पर करना है, बस ऑर्डर वहां पर 1 था, यहाँ पर जीरो ऑर्डर होगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा है मैंने. ठीक है, आई हैव स्किप्ड 2 स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट वन वॉज, मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट सेपरेटली नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे रेट लॉ सेपरेटली नहीं लिखा है, मैंने वो दोनों को कंबाइन करके डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा है. ठीक है, डायरेक्टली थर्ड स्टेप, the order there was 1, here it has to be 0 because we are studying zero order rate law. Now anything raised to 0 in maths is equal to 1. ठीक है, so maths में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि anything raised to 0 is always equal to 1. so ये पूरा concentration का term यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ k बचता है. ठीक है, so the differential rate equation is then solved as this. okay, तो यहाँ पे ये जो dt है ये यहाँ पे मल्टीपल के टर्म्स में चला जाएगा. दिस माइनस साइन अगेन हमने इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले लिया है जस्ट फॉर कन्वीनियंस सॉल्विंग पर्पस, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लिमिट्स आपको सेट करना है. सो द लिमिट्स हियर आर ऑल्सो ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो A0 रहेगा, यानी कि A0 सॉरी. सो दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन.
कब होगा? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिएक्शन है ये चीज। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू t, यानी कि वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी, एनी टाइम when you have to calculate your concentration of the reactants, so concentration of A जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। ओके ये लिमिट्स एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, यहाँ पर भी सेम है। दिस इज योर इंटीग्रेशन साइन, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिमिट्स लगा दिया हमने, दिस इज अगेन योर इंटीग्रेशन साइन, लिमिट्स लगा दिया बिकॉज ये टी के टर्म्स में था, तो यहाँ पे टी के लिमिट्स आ गए। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के टर्म्स में था, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिमिट्स आ गए। माइनस के वापस से इंटीग्रेशन के बाहर होगा, द रीजन इज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म्स का हम इंटीग्रेशन नहीं करते। ओके सो लेट्स सॉल्व दिस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अब log का कोई टर्म नहीं आएगा, बिकॉज डी ए है, यानी कि डिफरेंशियल टर्म ऑफ ए। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसको आप इंटीग्रेट करो। सो वी अज्यूम दैट योर देर इज अ मल्टीपल विच इज 1, अगेन योर ऑल्सो देर इज अ मल्टीपल विच इज 1, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो जब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके भी टर्म्स में होता है वो हमारा आंसर आता है। सो द आंसर इज लाइक दिस। ओके सो यहाँ पर एक और स्टेप स्किप किया है, इन लोग ने लिमिट्स जो है वो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देते हैं लिमिट्स। एक्चुअली द इक्वेशंस हियर व्हिच आई एम शोइंग टू यू is exactly the same which is given in your textbook. Okay, so इसीलिए मैं आपको उस हिसाब से ही explain कर रही हूँ। so ये directly इन लोग ने यहाँ पे limits लगा दिया है। तो 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी ए, सो माई आंसर इज ओनली ए। अगर ए पे हम सबसे पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, माइनस साइन एंड देन ए नॉट। ओके ये ऐसा ही रहेगा जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था। ओके बट यहाँ पे वहाँ पे लॉग यूज किया था, नेचुरल लॉग, यहाँ पे नेचुरल लॉग नहीं आया है। माइनस के अगेन रिमेन्स एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी इज नथिंग बट टी के जगह पे टी सब्सटीट्यूट करोगे तो टी होगा, टी के जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 हो जाएगा, -0 एंड टी -0 इज नथिंग बट टी। सो दिस टर्म रिमेन्स माइनस के टी। नाउ ये माइनस साइन को अगर हम इस साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस टर्म जो है ये हो जाएगा प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस। ओके सो इस तरीके से हम उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। एक और तरीके से हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, अगर हमको सिर्फ k का वैल्यू चाहिए तो जस्ट डिवाइड दिस होल इक्वेशन। इफ सपोज यहाँ से मैं t हटा दूँ तो मैं इसको पूरा डिवाइड करके t लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी इक्वेशन इसको लिख सकते हो। तो दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके यहाँ पे भी उसके यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स क्या होगा रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन ही यूनिट आता है। ये कुछ ऐसा है कि जब आप सपोज मैं आपको पूछूं कि 2 kg माइनस 1 kg का वैल्यू क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे 1 kg। ठीक है, आपने kg यूनिट वहां से हटा नहीं दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी के टर्म्स में होता है, एंड मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो यहाँ पे ये पर लीटर है। ठीक है, लीटर कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज DMQ। ओके तो कंफ्यूज मत होना, लीटर को हम DMQ भी लिखते हैं। ये जो T है ये per time हो जाएगा। Now this time again can be in seconds, it can be in minutes, days, hours, years, whatever it is. Okay, so this is all about your zero order rate law. Okay, इसके बेसिस पे भी ग्राफ है, बट यहाँ पर सिर्फ हम एक ही ग्राफ देखने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से। ओके सो दिस इज योर इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन को ही, ये वाला जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन को ही यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, रीअरेंज मतलब ये A0 को A नॉट को, आई एम सो सॉरी, A नॉट को इन लोग ने यहाँ पर प्लस साइन में करके ले लिया है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, उस फॉर्म में हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे।
तो ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। y जो है ये प्लॉट हो गया y एक्सिस पे, t जो है वो प्लॉट हो गया x एक्सिस पे। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आपको स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा आपको यहाँ पर कि ये लाइन ऐसे क्यों नहीं जा रही है, ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ क्यों आ रही है। द रीजन इज योर स्लोप इज नेगेटिव। ओके, तो जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन जो है वो नेगेटिव हो जाती है नेगेटिव स्लोप के साथ। ओके, straight line ही मिलता है but with a negative slope। okay, and this value okay from here to here, this value is nothing but your a naught and that is your intercept। ठीक है, सो पहले जितने भी हमने ग्राफ्स देखे थे उसमें इंटरसेप्ट वाज जीरो एंड द लाइन वाज पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो नहीं है तो ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, एट सम पर्टिकुलर इंटरसेप्ट। ओके, और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू होगा स्लोप का that would be nothing but k and k is nothing but your rate constant of zero order rate law। ठीक है, so this is your graphical representation of zero order rate law and this is your final equation। ओके, अगर आपने अच्छे से नोटिस किया है, अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम इज सेम एज योर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट्स है वो सेम होता है, तो द रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज योर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। कीप दिस इन माइंड। ओके, यहाँ पर भी हम हाफ लाइफ देखेंगे, तो चलो हाफ लाइफ देख लेते हैं। So this is your half life of zero order reaction. Again everything would be same. So this was your equation। यहाँ पर भी हम a0 को a नॉट को as it is ले लेंगे। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो वो as it is ले लेंगे। at जो है at को हम ले लेंगे यहाँ पे a0/2। ओके, now this should be 0। okay, and this was a0/2 एंड t जो हो जाएगा वो आपका t हाफ हो जाएगा। इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा a0 रिमेन्स एज इट इज, at की जगह पे आ जाएगा a0/2 t हाफ। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट a0 माइनस a0/2, तो 1 माइनस हाफ इज नथिंग बट हाफ। ओके, सो दिस बिकम्स a0/2। ये कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लो कि आपका a0 जो है वो x है, तो x minus x/2। okay, so this will be nothing but x/2। okay, so यहाँ पर भी आपका आ गया है वैल्यू a0/2 एंड t हाफ रिमेन्स एज इट इज। और ये जो आपका फाइनल इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, t हाफ इज इक्वल टू a0/2 के। ओके, मैं बार बार a0 a0 बोल रही हूँ, सो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो आइदर यू कैन से इट एज a0 a0 वॉट एवर इट इज। ओके, सो ये आपका फाइनल इक्वेशन है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जब आपको k की वैल्यू लेनी है तो आप k को यहाँ पे ले सकते हो, t हाफ यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ का कोई ग्राफ नहीं है। हाफ लाइफ का जो ग्राफ होता है वो सेम होता है हर जगह पे, बिकॉज इट एनी विच वेज इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली ओनली। So this was all about your zero order with graphical representation and with your half-life of zero order reactions. So the last part of this video is your pseudo first order reaction। ठीक है, now what is pseudo? Pseudo means false। ठीक है, first order is nothing but your first order reaction which you have studied in the very first thing। okay, first order reaction। So pseudo first order means false first order। लेट्स सी, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं एग्जांपल में। सो कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ओके, सो दिस इज योर मिथाइल एसीटेट एंड दिस इज योर वाटर। दिस विल गिव यू acetic acid and methyl alcohol। okay, so this is your reaction। now again I repeat, this is a hydrolysis reaction। okay, hydrolysis reaction है, वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो रहा है। ओके, सो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से पूछूं कि इसका रेट लॉ मुझे लिख के बताओ,
अज्यूम कर लो कि जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर जो है वो 1 1 का है, ठीक है। सो बेसिकली यू विल राइट द रेट लॉ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस वुड बी के डैश क्यों अभी आपको पता चलेगा। एंड ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के रेस टू में 1 ऑर्डर है, H2O के रेस टू में भी 1 है। नाउ ये रिएक्शन जो है, कोई भी हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सटेंट में लिया जाता है। हाई एक्सटेंट मतलब द वाटर इज बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ मिथाइल एसीटेट ही हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से ही हो जाता है कि सपोज़ कि आप अज्यूम कर लो कि आपके पास एक बकेट है और वो बकेट में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये बकेट में बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पे हम सिर्फ एक शुगर, एक सॉल्ट का, यानी कि एक एन वन NaCl वी आर डिजोल्विंग इन इट, ओके। सो 1 NaCl का पार्टिकल अगर हम इसमें डिजोल्व करें तो NaCl जो है वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl जो है वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, बट पानी इतना ज़्यादा है कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में डिफरेंस आता है, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। एंड इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, सो यहाँ पे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं एंड इट कैन बी रिटर्न एज के डबल डैश, ओके। सो रेट, अब जो इक्वेशन हो जाएगा रेट का वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को भी हमने ले लिया है के डबल डैश, एंड के डैश एंड के डबल डैश इज बोथ कांस्टेंट। सो दोनों कांस्टेंट को अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम उसको साथ में लिख लें और यहाँ पे हम के सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट माई फाइनल रेट इक्वेशन, ओके। दिस इज माई फाइनल रेट इक्वेशन फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे वो बिहेव कर रहा था एज सेकेंड ऑर्डर, बट नाउ it is being seen that कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही एक्चुअल में फॉलो कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन, कोई भी इक्वेशन, कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी कोई सम आ गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपको सारे इक्वेशन, सारे ग्राफ्स, हाफ लाइफ वगैरह सब कुछ जो है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही यूज़ करना होता है। वैसे इसका कोई इक्वेशन, कोई सम्स वगैरह आता नहीं है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में स्पेसिफिकली। सो दिस इज़ योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाइड्रोलिसिस के जितने भी रिएक्शन होंगे वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे, ओके। नाउ आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं बताया। ज़ीरो ऑर्डर का जो एग्जाम्पल होता है वो कैटालिसिस का एग्जाम्पल होता है। कैटालिसिस का एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो जितने भी कैटालिसिस रिएक्शन होते हैं जो खास करके गैशियस फेज के होते हैं, वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। सो ओके, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज ऑल अबाउट योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ओके। सो यहाँ पर आई गेस मैंने इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉस पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, ओके। सो गाइज, अगर तुम लोग को कुछ भी डाउट है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट मी, ओके, कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दोज डाउट्स, ओके। कुछ भी डाउट है, एग्जाम्पल्स, इक्वेशन रिलेटेड या एनीथिंग, यू कैन प्लीज़ हैव द कर्टेसी टू आस्क मी, ओके। एंड मेरा एक लास्ट वीडियो होगा, एक और वीडियो फॉर दिस चैप्टर, एंड दैट वुड बी माई लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, okay. So please bear me for one more video, okay. And for this video I guess this is enough. So okay, so this is thirds of first order reaction. So okay, so I'll just finish it up, okay. So thank you very much for bearing me, and one more video left for this chemical kinetics. So please stay tuned, okay. And thank you, I sign off.